कोटा में देखते हो कि जेई वाले बच्चे कितने प्रेशर में हैं, जबकि जेई तो रैशनल एग्जाम था। और ये इतना इरेशनल एग्जाम है, आप दोगे नहीं होगा, पीयर प्रेशर एंड मतलब द फोमो जिसको बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत रहता है, इंस्टाग्राम का ज़माना है, लोग अपने बैचमेट्स का, फ्रेंड्स का देख रहे हैं, वो गोवा जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो वही देन कंपैरिजन और ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। एंड जो भी प्रिपेयर करता है वो मोर और लेस वन रूम में अपने आप को लिमिट कर देता है, इधर उधर कम जाता है, तो फिर आपको वो फोमो ज़्यादा होने लगता है। एंड इन दैट केस यू नो योर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स जो भी आपको सपोर्ट सिस्टम देते हैं, वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So we will now move on to our next segment. In this segment, I'll be telling you some names, and you have to tell us what comes in your mind when you think of the name or the word of the name. So the first word I would say is Lal Bahadur Shastri Academy. So what comes to your mind when you hear this word? So very beautiful academy and very, very graceful, very elegant, and it has a vibe which which justifies the hype which is around it. I was there for the foundation course. It's a basically training for IAS officers, academy for IAS officers, but the other service guys go there for foundation course for 4 months, and it is mostly people say, and I agree to that, those are the best 4 months of your life. It's very, very good academy. One word is dream that comes to my mind. Lots of posts for Instagram. So next, this is going to be an interesting one. Hostel 10. For simpleton people like me, out of reach thing. Restricted. मेरी तो बंदी थी तो the next word I would say is Crescent. So for meta people, samosa and chai during lab hours. Still looking the same. Recipe is samosa and chai already. yes same samosa. Next we have PAF. 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 So 1.5 months of sheer emotions and I don't know nowadays, that was like 15 years ago. It was the first actual thing which you create with hands, all the posters and the backdrops, and so a lot of work out there. Very good engaging opportunity. God होता है. मैंने पर्सनली तो कभी काम किया नहीं पैफ में, बट इट इज़ वेरी, एज प्रियांक सर सेड, वेरी ब्यूटीफुल एंड बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है इतना ज़्यादा काम करने में. आप लोगों से इसने काम किया था I think I have to work. We work. H8 I work. Not in H4. H8 में हमने किया. Okay, so next word is mess. I was okay. What do you think? Mess. I came from Navodaya, तो मुझे यहाँ की मैस का खाना भी ठीक ही लगता है. मैं हॉस्टल 3 में था तो उसकी मेस तो अच्छी है. बच गया. These people would be very, no, yes, we have a good mess. सब दिया मैंने. The next word is Ensign.
मतलब 1 night or 2 days ऐसे I don't think they study a lot. One day, 2 days they study a lot. One past that one. फॉर मी एंसम आई से क्यों आ जाता है? वीक ऑफ सेमेस्टर की पढ़ाई। आप लोग भी एंड से इंतजार कर रहे हैं। I think सब लोग 1-2 दिन पहले ही पढ़ते हैं, कोई एफिशिएंटली पढ़ता है तो ज़्यादा ले आता है इसी के लिए, कोई कम एफिशिएंटली पढ़ता है तो कम लाता है। आई थिंक हिस्ट्री में पढ़ते सब 2 दिन ही हैं। रिमेंबर कि मेरे क्लास के डीआरबी जो है वो मेरे क्लास के डीआरबी कोई ज़्यादा पढ़ते हैं। Okay, so next we have the most awaited hostel GCs. Hostel GCs, yeah, मतलब I was not GSEC or anything, so not that much passionate about it, but yeah, सब लोग contribute करते थे through different fields. हॉस्टल जीसी मैंने खुद ने तो कभी पार्टिसिपेट वैसे नहीं किया, बट हमने जितवाए हैं। जैसे जीशा जो था और स्पोर्ट्स सेक्सी जो था, तो उसके लिए काफ़ी सिम लाना, प्रैंक फर्जी कॉल करना, लोगों को बुलाना, वोट डलवाने के लिए, कुछ जो एंटी मचाते हैं उनको कमरे वमरे में थोड़ा रखना चाहिए। एक आध दिन के लिए उनको वहीं चाय समोसा प्रदान करके कि अभी रहो यहाँ पे, 2 लोगों की ड्यूटी लगाना। I was more like Priyank sir. I wasn't involved in personal use. जिम खाना जिम खाना मेरे टाइम पे तो बहुत ओल्ड वाला जिम खाना होता था। आई डोंट नो इफ इट एग्जिस्ट नाउ। उसमें नॉर्मली सारे एक्टिविटीज तो जिम खाना में ही होते थे। तो वी यूज्ड टू बी देयर इन द नाइट टिल 1-2 जब तक भी होता था। गुड मेमोरीज, फर्स्ट few years of formative years of your life you make in college mostly happening in जिम खाना at that time. Gymkhana, I remember TT, playing TT. I used to play a lot of TT over there. Table tennis. My जिमखाना मेमोरीज मुडाई के बारे में। तो आई वॉज CG मुडाई, तो जो कॉन्सर्ट वगैरह कराते थे एंड जो भी इवेंट्स होते थे उधर ही होते थे। तो काफ़ी ग्रैंड मेमोरीज है एंड वो इट हैज़ बीन वेरी इवेंटफुल। अच्छा, आप तो स्पोर्ट खेलते थे? नहीं भाई, मग्गू और लुक्खा टाइप के वर्ड ही ठीक हमारे। Okay, so next word is polting. Like election polting during इतना तो समझ में आ गया कि वो सब ज़्यादा नहीं किया। Polt was there. अभी तो I was talking yesterday, तो काफी JNU टाइप इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसा सुना है यहाँ पे कि बहुत बट पोल्ट वाज देयर। मतलब जस्ट लाइक आई सेड कि किसी जैसे हॉस्टल 8 के उस टाइम पे हमको जीशा बनाना था। हरमिन को हमने बनाया था। अगर इफ यू हैव हर्ड, फुटबॉल सेकी पे फिर जीशा स्पोर्ट्स GS² बने थे। तो सिम लाना और ब्लैक बॉक्स में बंद करवा देना लोगों को कि ये थोड़ा सा एंटी जा रहा है, उस तरीके से। अगेन हाँ, एज ही सेड, पोल्ट आई थिंक अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तब भी थी बट इतना नहीं होता था। बट हाँ, मैंने भी जीशा, आई थिंक मेरे एक सीनियर गए थे पहचान के, तो उनके कैंपेन में मैं इतना इन्वॉल्व नहीं था, बट फिर भी आई वाज ऑन द अदर साइड। जिनको इन्होंने ब्लैक बॉक्स में डाला पर्सन, नॉट द सेम बैच ऑब्वियसली, बट यस, तो थोड़ा बहुत किया है बट इतना नहीं। ये वाला वर्ड आप लोगों के टाइम पे भी होता होगा, RG। आरजीगिरी तो होती थी बिकॉज ऑफ रिलेटिव ग्रेडिंग, उसमें आरजीगिरी तो होती ही थी। बट आई वॉज अ 7 पॉइंटर, तो मैं आरजी कर भी नहीं सकता था कभी। ज़्यादा ही नीचे हो गया। हाँ जी, यार मैं तो देखो EP से था, तो EP पीपल इटसेल्फ इज RG। तो दूसरे डिपार्टमेंट वालों के लिए RG थे, और मेरा DR1 जो था वो हवा 48 थी उसकी। मतलब वो उसके आने से ही हमको खौफ था कि क्यों डिपार्टमेंट में आ गए। तो बट सो दिस इज द थिंग, एंड RG बचाने की मेरी भी इतनी कुछ हैसियत तो थी नहीं, एज अ डिपार्टमेंट मच जाती थी।
मेरे विंग में थे कुछ, पर ठीक है, इतना कुछ सीरियस नहीं था। एंड अगेन मतलब इवन आई वाज फ्रॉम एनर्जी, तो ऐसे कुछ कंपटीशन होती है नहीं, तो ठीक है। बट ऐसे कुछ स्पेशली ना मेरे पे आरती हुए ना मैंने की है कभी। आप लोगों के टाइम में ऐसा कोई लिंगो था जो आपको आज तक याद है कॉलेज में? आई थिंक जनरल लिंगो सब लोग यूज करते हैं। नॉर्मल जो आप लोग यूज करते हो, आई थिंक मोस्ट ऑफ द लिंगो में भी रिकॉग्नाइज मचाना से लेके तो बहुत होता है। आई गेस मतलब अभी तो वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ ही हो गया है कि मतलब डेली यूज में भी आ जाता है सेंटीमेंट मार, ये मचा देना एक्सेट्रा, तो ठीक है। बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिनेरियो में हमको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड आवर लिंगो, बट व्हेन वी सिट टुगेदर तो वी यूजुअली टॉक लाइक दैट। हाँ मतलब मेरे पेरेंट्स ने बात करना स्टार्ट कर दिया अभी तो। Well, that was so fun, sir. So now we will be moving on to our next segment. So we will be opening the floor for audience to ask the questions. So guys, this is a great opportunity for you all to clear all your doubts regarding UPSC and ask from the top civil servants of our country. Raise hands if you want to ask a question. Hello, sir. So, is there any moment in your preparation where you feel like giving up, and how you overcome this moment? मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आई थिंक सब ठीक चलता है क्योंकि सब कुछ नया होता है। सेकंड अटेम्प्ट से आई थिंक एवरी डे इज दैट मोमेंट। तो अगेन फर्स्ट थिंग जो विच विल हेल्प यू नॉट टू गिव अप इज योर मोटिवेशन। एंड सेकेंड थिंग अगर मतलब कुछ है जो इम्प्रूव कर सकते हो वगैरह उतना ही है। बट ऑनेस्टली आई फील आफ्टर 2-3 अटेम्प्ट्स यू शुड स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स, नॉट एग्जैक्टली लाइक completely deviating from UPSC, but at least take a part-time job or something. But yes, that will help you sustain आगे भी। आई एग्री विद अनिकेत। पहले अटेम्प्ट में आप सिलेबस ही गैदर कर रहे होते हो, समझते हो, एक साइकिल पूरा करने में ही 1-1.25 साल लगता है। प्रीलिम्स मेंस लकी हो इंटरव्यू दोगे, नहीं तो इंटरव्यू देना ही अपने आप में एक दीदार करने वाली बात होती है कि बोर्ड का दीदार एक बार हो जाए। तो गिविंग अप आफ्टर दैट 1.5 year इज एवरी अदर डे गिविंग अप एंड फाइटिंग टू कीप योर चिन अप। So the next question. I actually had a question कि अभी तक हमने आपने जितनी भी बात करी that was related to your exam. So would you like to tell us something how your life is now after becoming civil service officer, and is it really as glamorous as people think? Actual reality. When you say glamour, yeah, there's a lot of social recognition, and that social recognition is what attracts people. In particular, if you say so I'll always differentiate between the field services and the office desk services, right? So IAS, IPS and उनके cousin भाई बहन जो है वो डेनिक्स वगैरह हैं। These are the field services जिसमें आप IAS में DM बनते हो, उसमें SDM बनते हो, थोड़ा सा एग्जाम है। बट मेन IAS, IPS if you see, there's a lot of social recognition। आप डिसएडवांटेज ये है कि छोटे डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हो फर्स्ट 7-8 years ऑफ योर लाइफ, एंड वहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो समटाइम्स व्हेन दे कम टू मुंबई दे सी विद ऑफ, क्योंकि उन्होंने मतलब बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट में 2 साल रहे, फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में 2 साल रहे। सो दे आर लिविंग इन स्मॉल टाउन्स, द मेन टू ऑल इंडिया सर्विसेज, एंड उस लेकिन वहाँ सोशल रिकग्निशन बहुत ज़्यादा है। एवरीवेयर दे गो, आज 3-4 जगह पे तो वो भाषण कर रहे हैं, फीता काट रहे हैं, समथिंग। सो दे हैव देयर ग्लैमर। In the central government services, which is IRS, audit services, railway services, defense services and all that, जो same exam से थोड़े नीचे वाले ranks वाले भाई जाते हैं, उसमें you don't have the glamour. It is basically a job, a office job, a little bit of recognition, क्योंकि that's more of a shadow of the first 2 services which we get from the other
But otherwise, you don't go to any place to do inaugurations and all that. You just remain in your office and आप ऑफिस से करते हो. For example, we do assessment. जैसे सेंट्रलाइज चेकिंग होती है यूनिवर्सिटीज़ में कि बच्चे एग्जाम लिखते हैं एंड प्रोफेसर कॉपी चेक करते हैं, यहाँ लोग ITR भरते हैं और हम उनका स्क्रूटनी करते हैं कि वेदर दोज रिटर्न्स एंड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट और नॉट. So there is what glamour is there. It's steady only. So law keeps on changing, new provisions keep on coming. पुराने provisions भी इतने मोटे हैं कि फिर then it's a very intellectual kind of thing. So glamour वाला part कम हो जाता है. It's a routine job. So that is also one thing you have to see, and that is why people keep on giving again and again till they reach the first two services or till they exhaust their attempts. Hello sir, how the environment of IIT Bombay helped in your interview? Could you share your interview experience? Thanks. So IIT बॉम्बे से तो जो मतलब पर्सनालिटी बिल्ड होती है, आई वुड से बीट एनी इवेंट्स जिसमें भी काम करते हो, एक्सप्रेस मूड है, सार्क एक्सेट्रा, तो दैट डेफिनेटली हेल्प्स, क्योंकि एटलीस्ट स्टेज फियर नहीं होता है, बात करने के लिए नहीं डरते हो, एंड एक एनालिटिकल वे में दिमाग चलता है, तो दैट हेल्प्स इन द इंटरव्यू आई थिंक. बट अगेन मतलब वो जो देख रहे हैं इंटरव्यू में, दैट इज मोर लाइक स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, थोड़ा एक वेल अवेयर पर्सन वगैरह, तो उसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन लगती है. बट यस डेफिनेटली. एंड वन मोर थिंग जिसमें IIT बॉम्बे हेल्प्स इज जो एल्यूमनाई नेटवर्क है, मतलब यू कैन जस्ट पिंग एनीवन एंड आस्क कि कैसे प्रिपेयर करना है वगैरह, एंड दे विल हेल्प यू. तो उस एस्पेक्ट में भी आई थिंक इट्स वेरी बेनिफिशियल. सो मैं एक पॉइंट जरूर ऐड करूँगा, अनिकेत ने बिल्कुल राइटली एक्सप्लेन किया. इसके साथ जिसके ड्रॉबैक भी आपने पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात की, तो वो कई बार इसी बात पे आपकी खिंचाई भी कर देंगे कि यू आर फ्रॉम IIT बॉम्बे, यू आर वेस्टिंग वन ऑफ द सीट, व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू एज एन IT. ये भी होता रहेगा, because for them you are a technocrat, technical people who has been graduated, and after that you will probably opt for some MNC and all, and government has spent money to teach you and get the education. पर उनके नज़रिए से वो एक ड्रॉबैक भी रहता है कि हम आप किसी और की सीट आपको क्यों दें. आइदर वे जस्ट दोनों तरफ हो सकता है, तो उसके लिए भी आंसर रहते हैं, हम प्रिपेयर करके जाते हैं कि नहीं हम इसको यूज़ करेंगे, जो भी एजुकेशन यहाँ पे आई है उस तरीके से. Sir, how much is the political pressure on civil servants? Is it true that people who want to work really well get death threats and all, as it's shown in news? So the field services get a lot of political pressure, of course, because वो daily public से deal करते हैं. The central government services they hardly have any political pressure क्योंकि उनका normal office job रहता है. फील्ड सर्विसेज अगर IAS IPS जो डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है, DM, कलेक्टर, कमिश्नर, IG रैंक, SP, लॉ एंड ऑर्डर में, उनको ऑन डे टू डे बेसिस दे डील विद पॉलिटिकल पीपल एंड लॉ मेकर्स. And we are IRS people, so we have a sitting desk job. So in service of like 6-7 years of mine and almost 7-8 years of प्रियांक भाई, मुझे नहीं लगता कि हमको किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने अभी आज तक कॉल किया. Nobody would dare to call us. But I think उसमें एक चीज़ है कि you learn to handle that pressure. So I'll give you an example. मेरा नहीं है, अमरीश कुमार सर हैं, who is I think 2004 बैच राजस्थान कैडर IAS. तो उन्होंने एग्जाम्पल लास्ट ईयर दिया था. So basically he was posted as secretary social justice department in Rajasthan, and that department handles around 300-400 hostels in Rajasthan. तो initially what used to happen is जो भी hostel में procurement होता था, right, toothpaste, food grains etc., तो वो decentrally होती थी, local से ले लिया वगैरह. Now suddenly one day his minister asked him कि centrally ही करना है, there will be one vendor who will provide all the materials and उन्हीं से लेना है. Now there might have been some quid pro quo, we don't know, but there was no reason to change it drastically. तो उसके बाद he suggested the minister कि
थोड़े बहुत issues हो सकते हैं, whatever he might have found out, but minister did not budge and he gave him a written order which has to be followed. So ठीक है, the system changed to procuring centrally. After 1 month, he noticed that the quality of materials has deteriorated substantially. मतलब कोई भी brand का toothpaste था, कुछ भी brush था, कुछ भी था, etc. So now the question is, how do you go about it? Your job is to ensure the quality, but also you have to listen to the minister, which is your political boss. So what he did was, he basically went to the market, he got rates, like 3 different rates of all these materials, and he submitted it to that vendor. He said कि देखो तुम जो दे रहे हो इसमें ये सब भी आता है, तुम दे नहीं रहे हो, either तुम दो, नहीं तो मैं जो ले रहा हूँ उसको दे दूंगा contract. So what happened was, after some time the vendor started giving the quality materials and it came back on track. So abhi if you see, there was a middle way out, right? You also listened to your minister, but you also ensured your job was done. So this is the thing which you need to learn on the job, and ये हो जाता है, मतलब अगर कर लोगे तो. So added to that, one more point is that take it in a wholesome view. Just don't take it कि there's a tussle in bureaucracy and political leadership. It's not like that. That's just like it has been projected somewhere. Political leaders, they are directly responsible to the government, and in every 5 years, right? So they have a bigger stake. The people do not ask the officer in charge, they ask the minister, the Janata representative. So they have larger stake. Even in the constitution, we the people came, right? So there has to be harmony in both. And with harmony, things get easily solved. Okay, thank you, sir. We'll be now taking one last question. Maybe know what options you took during your preparation and how you came to choose them. When I went for preparation, I looked at maths, physics, and then I thought this is what I've been doing for last 6-7 years. So I was already dejected with all that, so I took Sanskrit literature. Not a very good choice to take Sanskrit literature, because even after many years, I still can't write or Sanskrit fluently. So we end up mugging the answers and not learning करना पड़ता है उसमें. So पढ़ने में अच्छा लगता है, but फिर exam में you can't write because of the speed, you don't get the speed. इसमें भी I went with the good old elimination method. 20 या 25 कुछ ऑप्शनल होते हैं, तो I started eliminating कि मैनेजमेंट नहीं चाहिए, इकोनॉमिक्स नहीं चाहिए, एंथ्रोपोलॉजी नहीं चाहिए, ज्योग्राफी नहीं चाहिए. And I was left with 3 or 4 choice. Physics, chemistry, PubAd जो उस टाइम चल रहा था, political science IR. मैंने physics देखा तो मैंने वहीं पे उसको काट दिया कि 4 साल पढ़ाई थी, मैं इसको तो नहीं लूँगा. Then फिर I left with PubAd and all. तो उस तरीके से I read books of international relations. मैंने सप्ताह भर पढ़ के देखी 1 week or so. Then I got hooked to it, and then I finalized कि PSIR, Political Science and International Relations को final करता हूँ. My optional was physics. तो मेरा थॉट प्रोसेस एग्जैक्टली अपोजिट था कि जीएस में बहुत टेक्स्ट होता है, इतना देखा नहीं जाता है, थोड़े तो नंबर दिखने चाहिए. तो इट वाज इधर मैथ्स और फिजिक्स, बट फिर एमए 105 में छकी थी तो to physics. But answering your second question, how should you go about choosing optional? I would say कि कुछ जो भी optional लोगे वो मास्टर्स लेवल तक पढ़ना पड़ता है, either इधर MSc और उधर MA. तो first you should be very interested in that कि पढ़ पाओगे उस लेवल तक 1 साल. तो उसमें the way to go about it is, as आकाश सर said कि just 25-30 optional है कुछ, तो go through it, एक बार देख लो क्या क्या interesting लगता है. And then there are subsequent filters like classes होने चाहिए, जैसे फिजिक्स के लिए भी मतलब टायर्स करके established क्लास है, तो उसके बाद रिसोर्सेज होने चाहिए. फिर someone thinks कि जीएस के साथ कितना ओवरलैप है, किसी को लगता है कि what मतलब जैसे मैंने सोचा कि नंबर्स दिखने चाहिए, थोड़ा स्कोरिंग होना चाहिए, डेफिनेटिव आंसर आना चाहिए, एक्सेट्रा. So it completely depends, but
मतलब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसकी इंटरेस्ट होना चाहिए टू रीड इट टिल MSc ऑनर्स लेवल. Thank you everyone for asking your questions so enthusiastically. I hope you all had your doubts cleared very well. Sir, we'll be moving on to the next segment. So, there are a lot of misconceptions regarding UPSC and BPSC life. So, we'd like to know what's your say on them. The first statement is, during preparation, a candidate should study for 16 hours a day. अच्छा और कोई I mean, it's very, it depends on the situation. तो जैसे मतलब I started preparing in February of 21 एंड उसके बाद मैंने अक्टूबर में प्रीलिम्स दी, वो क्लियर हो गई थी, बट तब तक मैंने 2 सब्जेक्ट जो थे एथिक्स एंड एसे वो नहीं पढ़ा था. तो फ्रॉम नवंबर टिल जनवरी जब तक मेंस थी आई डिड स्टडी फॉर 16 आवर्स, क्योंकि इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, इट वाज गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक, तो तब हो जाता था 16 आवर्स. बट आई थिंक दिस इज नॉट द केस फॉर एवरीवन. इफ लाइक let's take an example of Kanish Kataria sir. If you study for 1.5 years, so even 8 to 10 hours per day maybe हो जाएगा. And this is not a standard because it will depend from person to person. But वैसे उसको negatively लेने की और डरने की जरूरत कुछ है नहीं. 16 घंटे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है. 8 to 9 hours ब्रेक ले लेके 2.5 घंटों के या 3 आवर्स के स्लॉट में, इस तरीके से मैंने किया था. ब्रेक एज ए 2.5 आवर्स स्टडी एंड देन 15 मिनट्स का ब्रेक, उस तरीके से 8 से 10 घंटे. बट आई अग्री विद अनिकेत इन सम सेंस कि जब मेरी भी मेंस थी तो उस टाइम में आई डिड 12 आवर्स रनिंग वाला थिंग या 11 आवर्स आप बैठ के पढ़ रहे हो 4 घंटे कंटिन्यूसली. आपको कुछ जब टारगेट खत्म करना, जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस का बताया नाउ, अब मेरा मेंस पहले मुझे खत्म करना था. आई वाज राइटिंग माय फर्स्ट मेंस. पॉलिटिकल साइंस का मुझे पी भी नहीं आता था, बट मैंने सिलेक्ट कर लिया था क्योंकि IR पढ़ा था मैंने. तो मैंने 13 आवर्स 12 आवर्स का वो लगाया था फिर कि नहीं 2 मंथ में ये करना है. बट इट वॉज नॉट कि साल भर मैंने 12, 13, 16 घंटे किया, ऐसा नहीं था. 6 to 8 ऑड आवर्स एवरेज. बट जब मेंस आ रही है तब आपका खुद आप बैठोगे पढ़ने के लिए तो 12-13 आवर्स आई थिंक हो जाता है. सेम जैसे ही मोर और लेस लाइक आई एम नॉट द राइट पर्सन. मैं 16 घंटे पढ़ने की कोशिश डेली करता था. होता 5-6 घंटे 8 घंटे जो भी है, बट कोशिश तो आती है. बिकॉज IIT वाले सब रैशनल, मतलब ये तो होता ही ना कि तुम्हारे पास एग्जाम है सामने, तुम्हारे पास और काम क्या है करने के लिए, जॉब छोड़ के बैठे हुए तो आप पढ़ो. So, well, next we have heard that starting preparation as early as possible, guarantees success. So, what are your views on that? दोनों है, मतलब उस समय मेरे को मतलब आइडिया, डोमिनेंट आइडिया था वो ये था कि अभी मैं ऑलरेडी पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ, रनिंग उसमें हो जाएगा. वंस यू गो आउट ऑफ द कॉलेज और फिर जॉब वॉब कर लोगे 2 साल तो दैट फ्लो टूट जाएगा, काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट पीपल गिव. बट देन अदर वे अराउंड वन कैन से कि अगर आप 2 साल कहीं अच्छी जॉब करके आते हो, यू डिड इन बेन एंड कंपनी, so you become more professional, you are more diligent, you know the value of efforts and how to rationalize your efforts so that efficiency will increase. जबकि अगर आप कॉलेज में 4 साल मतलब जनरली जनता चिली रहती है, चिल मार के आ रहे हो, तो फिर आप 5th ईयर में मतलब प्रिपरेशन वाले ईयर में सडनली आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लोगे इनटू अ समवन वेरी एफिशिएंट गाय, इसकी चांसेस भी मतलब कम ज़्यादा हो सकती है. तो as early as possible has pluses and minuses, and you have to see कि तुम्हारा क्या स्टेज पे हो, whether you are already burned out कि मैं तो अभी और नहीं पढ़ा जाएगा मेरे से, I want to do job, और the other argument which I आई स्टार्टेड आफ्टर ग्रेजुएशन. तो अब उसको अर्ली कहो या लेट कहो, मगर इट डिपेंड सब्जेक्टिव. जस्ट लाइक आई गिव एग्जांपल ऑफ शिशिर गुप्ता. तो उन्होंने 2013 में ग्रेजुएशन किया था.
बट 2020 में निकाले हैं वो, तो इट हैज़ बिन 7 years। मे भी उन्होंने जॉब किया होगा, उसके बाद प्रिपरेशन शुरू की होगी। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत क्लियर पता होता है कि नहीं सिविल्स देना है फाइनल ईयर में। अब जैसे एक प्रदीप कुमार एक थे इंदौर से, AIR 26 आई थिंक उनकी थी, नॉर्मल BA पर्सन, और उनको कॉलेज टाइम से था उनका कि मुझे तो सिविल्स ही करना है। तो उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में आई थिंक 93 कुछ रैंक लगाई थी, उनका सर्विस नहीं मिली थी IAS। सेकंड अटेम्प्ट में कॉन्जिक्यूटिवली दिए थे, 21 साल के थे जब 93 लगाई थी, और 22 साल के जब हुए थे तब उनको AIR 26 मिला था और उनको सर्विस मिली थी। तो ही न्यू, तो उन्होंने अर्ली स्टार्ट किया। अब आप उसको अर्ली कह सकते हो, तो इट डिपेंड, वेरी सब्जेक्टिव है। हाँ मतलब देर इज होल स्पेक्ट्रम ऑफ केसेस अवेलेबल। जैसे 2019 के पास आउट है आई थिंक सिमीकरण और मयंक गुर्जर, तो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया राइट आउट ऑफ इंस्टीट्यूट। एक केस वो है। सेकंड केसेस है मेरे बैच वाले जिनका अभी आई थिंक 6th अटेम्प्ट है एंड फिर भी कहीं पे हुआ नहीं है। एंड देयर आर पीपल हु हैव लेफ्ट कंप्लीटली, मतलब एक प्रिपरेशन ही छोड़ दी है, जिनके अटेम्प्ट खत्म हो गए। बट देयर आर ऑल्सो केसेस लाइक जिन्होंने 4 साल जॉब किया, फिर आ गए, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया या फर्स्ट 2 साल में निकाल लिया। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। मतलब फर्स्ट जैसे प्रियांक सर ने बोला कि डू यू फील कि जॉब करना ज़रूरी है, यू कैन गेट अ न्यू पर्सपेक्टिव। जैसे पेन का मुझे बहुत यूज़ हुआ था इन प्रिपरेशन। जो कंसल्टिंग में हम करते हैं यूजुअली 80-20 आंसर फर्स्ट, सोचो कि करना क्या है एग्जैक्टली एंड देन स्टार्ट डूइंग। तो ये सब ने मतलब काफ़ी हेल्प किया इन प्लानिंग एंड आई कुड फिनिश दैट सिलेबस इन 10 months। तो उतनी हेल्प हो गई थी। बट इट विल वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जस्ट मतलब टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। Thank you, sir. So next fault most of us have heard is an examination writing in flowery languages and using complex English vocabulary is necessary to impress the invigilator and examiner. इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है इनफैक्ट। द एग्जामिनर्स आर नॉट ग्रामर एक्सपर्ट्स वहाँ पे, एंड ऐसे कुछ होता भी नहीं है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई थिंक 4000 वर्ड्स लिखने होते हैं 3 घंटे में, तो कुछ सोचता नहीं है ये फ्लावरी लैंग्वेज वगैरह। इट इज़ हाउ क्लियरली यू राइट, हाउ वेल यू कैन पुट डाउन योर थॉट्स ऑन द पेपर एंड हाउ डाइवर्सली यू कैन थिंक। क्योंकि इवेंचुअली वही है, मतलब इफ यू टेक IAS, तो अगर पॉलिसी बनानी है तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर करने आने चाहिए, दैट शुड रिफ्लेक्ट इन योर आंसर। तो वही चीज़ है। बट देयर इज़ नो नीड ऑफ फ्लावरी लैंग्वेज, नथिंग। इवन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले लोग कैन डू इट वेरी इजीली। फ्लावरी लैंग्वेज तो आई डोंट थिंक वर्क करता है, मतलब सीरियसली। आप हम लोग के साथ ड्रॉबैक क्या होता है, मैं उसको क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सटेंड करता हूँ। वी आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो वी राइट एज इफ x = y, हैंस प्रूव, खत्म काम। पॉलिटिकल साइंस में मेरे साथ दो अटेम्प्ट में यही हो रहा था। उसने प्लेटो के बारे में पूछा, मैंने 3 लाइन में प्लेटो लिख दिया, खत्म काम। मुझे नंबर ही नहीं आ रहे थे। तो हमारे साथ फ्लावरी लैंग्वेज के बजाय दिक्कत ये होती है कि वी राइट कट टू कट, बट दे वांट सम स्टोरी बैकग्राउंड, दैट्स हाउ दे जज कि आपका नॉलेज है। पॉलिटिकल साइंस में हाउ एज द एग्जामिनर विल जज योर नॉलेज। प्लेटो के बारे में पूछा है लेट्स से, तो उसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। तो कमिंग टू दी फ्लावरी लैंग्वेज वाला पॉइंट, आपके पास पहले तो इतना टाइम रहता नहीं है कि आप बहुत अच्छा सोचो, शशि थरूर वाला लिंगो, राइट। सेकेंडली, आप जो प्रैक्टिस रूम में करते हो दैट ओनली कम्स इन द पेपर एंड एग्जाम रूम, एंड उसको एग्जामिनर को आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज कट टू कट दोगे, देन वो मार्क्स देगा, रैदर देन फ्लावरी लैंग्वेज और ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज के बजाय। आपको वो ध्यान में रख के प्रिपरेशन करना चाहिए। Also like to add the same कि as an engineer we try to write concise and हम rationally ये सोचते हैं कि ये actually काम की चीज़ है और ये काम की चीज़ नहीं है। जबकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आंसर में पॉइंट्स भर देते हैं। अगर एक क्वेश्चन के 3 सब पार्ट्स हैं, सो दे विल राइट 6-7 पॉइंट्स इन ईच सब पार्ट, तो उनके 21 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो आपने क्या किया था, आपने सिर्फ कोर बुलसाई को हिट किया, तीनों सब पार्ट में 2-2 पॉइंट लेके आपके 6 पॉइंट दिख रहे हैं, और दूसरा आदमी जिसने कचड़ा पॉइंट्स भी 4-4 एक्स्ट्रा भर दिए थे उसके 21 पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो एग्जामिनर विल ग्रेविटेट टुवर्ड्स द अदर पर्सन जिसने एक्स्ट्रा पॉइंट्स भरे हैं।
नाउ ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स कैसे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आया और आपने उसमें लिख दिया सोशल ऑडिट, आरटीआई, ई गवर्नेंस, एक जनरल होता है पब्लिक इंटरेक्शन, यू नो, सो ये जनरल पॉइंट्स है, फिलर पॉइंट्स हैं। ये सबको पता है कि हर क्वेश्चन में ऐसे उधर उधर बैठ जाएंगे, यू नो, जेंडर जस्टिस, ऐसे कुछ कुछ ऐसा हुआ है कि आप सोशल इश्यूज का क्वेश्चन है, अब मुझे लगा कि वो एल्डरली के पूछ रहा है तो मैं एल्डरली के बारे में लिखूं, और कोई दूसरा है जो कह रहा है कि एल्डरली में भी एक जेंडर वाले पे स्पेसिफिक होना चाहिए। तो वो हमने तो, क्योंकि हमें लग रहा है कि हमने ब्रॉड आइडिया सारे कवर कर लिए एंड वी हैव हिट द नेल, तो हम उसको इधर उधर नहीं लिखते। सो दैट इज नॉट फ्लावरी बट दैट इज वर्बोस। तो थोड़ा सा ये है कि यूपीएससी के भी हर सेगमेंट में, इकोनॉमी वाले में कुछ फिक्स पॉइंट है जो आपको लिख देने हैं, सोशल जस्टिस वाले में है, तो जीएस के पेपर्स में और अदर बाकी सब्जेक्ट में यू कैन पुट सम फिलर सो दैट वो काम करता है, ऐसा नहीं कि 100% काम नहीं करता। सो अगर किसी ने हर क्वेश्चन के सारे सब पार्ट्स आंसर किया और अंदर 4-5 पॉइंट्स लिखे हैं तो यू ऑब्वियसली गेट मार्क्स। एक्चुअली वही ह्यूमैनिटी पीपल जो SRCC, DU, जनरली मैं बिल्कुल आपको फैक्ट बताता हूँ, जैसे अभी रैंकर जो हैं उनको यहाँ पे एज वो मिल जाती है बिकॉज वो 3-4 साल वो लिख रहे हैं, वो उसी चीज़ को लिख रहे हैं। हम लीनियर इक्वेशन, क्लासिकल मैकेनिक्स में माँ 105 में क्या कर रहे हैं, हम हेंस प्रूव कर रहे हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। अब जैसे इशिका किशोर हैं या गरिमा लोहिया, तो दे आर ऑल फ्रॉम ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड, तो दे हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग ऑलरेडी, तो उनको उतना राइटिंग में दे ऑलरेडी हैव दैट स्किल, वी नीड टू डेवलप इट। वहाँ पे थोड़ा सा हमें फ्रिक्शन दिखता है एंड एट द एंड ऑफ द डे आई वुड जस्ट से इट्स अ ग्लोरियस 10th क्लास एग्जामिनेशन, बिलीव मी। आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट। जैसे मैं अगर फिजिक्स का एग्जांपल दूँ तो उसमें जो एक्चुअल सम्स होते हैं वो जेई से बहुत इजी होते हैं, मतलब आगे तो ओरली सॉल्व हो जाते हैं। बट द थिंग इज उसमें पहले इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है कि डिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम कॉर्नर एक्सेट्रा, ये सब ग्रिमाल्डी ने डिस्कवर किया था 1765 में। देन यू सॉल्व सम, अच्छा सुंदर सा फिगर बना दो एंड फिर डिफ्रैक्शन का कोई तो एप्लीकेशन लिख दो। तो दिस इज हाउ यू राइट इन फिजिक्स। बट द थिंग इज कि दिस इज द डिमांड ऑफ द एग्जाम। अभी अगर तुम जेई के लिए प्रिपेयर करते हो तो ऑप्शन से आंसर कैसे निकलना है सीख ही लेते हो ना, क्योंकि वो डिमांड ऑफ द एग्जाम है। यू डोंट मग अप द डेफिनेशंस कंप्लीटली, बस समझ लेते हो। सो दैट इज आई थिंक व्हाट इज नीडेड कि जो एग्जाम का डिमांड है, जैसे मे बी राइटिंग वर्बोस इज द डिमांड, मे बी राइटिंग इंट्रोडक्शन, फिगर, कंक्लूजन इज द डिमांड, मे बी राइटिंग डाइवर्स पॉइंट इज द डिमांड। तो इफ यू फुलफिल दैट देन आई थिंक यू आर गुड टू गो। मुझे ये नहीं पता था कि उसमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है, नहीं तो मैं जरूर फिजिक्स लेता। आई वाज सीरियसली, आई वाज जस्ट होपिंग कि सेम क्लासिकल मैकेनिक्स को उसी तरीके से सॉल्व करना होगा, देन आई डिडंट टेक दैट, बट एनीवे। Well, that was great, sir. Next, we have heard that social life and hobbies should be completely sacrificed during preparation. मतलब तभी पूरी शिद्दत से preparation हो पाएगी। I completely think opposite of this, in fact, क्योंकि the preparation in itself is a very isolated process. तुम अकेले ही कर रहे होगे, and especially if you don't go to Delhi, फिर तो अकेले ही, जैसे मैंने घर से किया। तो what I used to do is first I have never put a timer on my Instagram, तो वो चलता ही है। Second, weekends I do go out with my friends, मतलब even during the preparation I used to go out. I think that helps you being sane. एंड जो वीकेंड पे अगर बाहर जाते हो, थोड़ा पेरेंट्स के साथ बात करते हो या फिर थोड़ा और कुछ घूम भी मारते हो, तो दैट रिचार्जेस यू एंड एफिशिएंसी ओवरऑल बहुत बढ़ जाती है। तो आई थिंक येस देयर शुड बी अ बैलेंस, बट यू कैन नॉट कम्प्लीटली एंड यू शुड नॉट कम्प्लीटली शट इट ऑफ। आई थिंक कि सोशल लाइफ से थोड़ा कट हो जाता है, बट अगेन अब जैसे इंस्टा 2015 में मैंने बात की थी, तो इंस्टा का तो इशू ही नहीं है क्योंकि था भी नहीं, आई डोंट थिंक इट था। फेसबुक वाज देयर, तो फेसबुक पे बट आई वाज अनएक्टिव, क्योंकि फिर आप वो पोस्ट देखते हो बैचमेट्स के, कोई घूम रहा है, कोई बाली जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको लगता तो है। बट जस्ट लाइक सोशलाइजेशन का, तो यू नीड सम वीकेंड पे आपको कुछ एक एनर्जी बस्टर तो चाहिए, तो आप लोकल मतलब जो भी दोस्त हैं उनके साथ कहीं थोड़ा बहुत चले जाओ। जैसे आई यूज टू वॉच मूवीज, मुझे मूवीज़ का काफ़ी शौक था। अब थिएटर जाना एक अपने आप में पेन था, क्योंकि उस टाइम में डार्क नाइट आई थी एंड आयरन मैन का कुछ थर्ड पार्ट आया था, एंड आई वाज
fan of both of them. But I didn't go to theater, तो मैंने दो एक दोस्तों को बुला के घर में लैपटॉप पे हम लोगों ने सेटअप कर लिया. So this kind of thing आपको थोड़ा सा टाइम मैनेज करके करना पड़ता है. Also I was teaching as well, मतलब मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था एंड प्रिपरेशन कर रहा था. तो टाइम वॉज नॉट अ लग्जरी दैट आई हैड. उस तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा. आई लीव इट अप टू यू, इट्स योर कॉल. जेई के टाइम पे व्हाट वर्क यू, अपना अपना पुराना एक्सपीरियंस सोच लो. कुछ अगर उस टाइम काम करता था तो वही वाला कर लो, और जो पुरानी मिस्टेक्स हैं उससे लर्न करके जहाँ वो टाइम वेस्ट किया हो मत करो. सो बिकॉज यू ऑलरेडी क्रॉस्ड वन एग्जाम, यू ऑलरेडी यू सी व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड व्हाट डजंट वर्क फॉर यू. अगर जेई के टाइम पे मंदिर जाना अच्छा लगता था तो अभी चले जाओ, नहीं अच्छा लगता था तो भी थैंक यू सर, रियली बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल थी सारी चीज़ें. So next, we have some more questions for you. Like as we all know, even the brightest minds of our country have faced rejections at some point, like be it a college POR or any competitive exam. So how should we deal with rejections? अभी मैं अनिकेत तो नहीं दूंगा, उसने तो बैक टू बैक सिलेक्शंस लिए. ये अभी रिजेक्शंस अगेन in UPSC, I think probability of getting rejected is very high, and as both of our friends have told us कि बहुत सारी स्टोरीज हैं, किसका 4 बार में नहीं हुआ, 3 बार में नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, एंड ऑल द थिंग्स विच वर नॉट इन योर हैंड. सो सिविल सर्विसेज में यू अगेन बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड सो मच ऑफ टाइम, यू अगेन इन्वेस्ट मोर, एंड देन पुरानी मिस्टेक से कट करके जो नया कर सकते हो, एंड देन यू एंड sometimes nothing else new is required. You just repeat the process, trust the process कि ये process ही सही है, ऐसे पढ़ना ही सही है, and then you do it rather than trying to change and do something new. For example, किसी का GS में सेम टाइप के आंसर लिख के इस साल मार्क्स आए, अगले साल मार्क्स नहीं आए, बिकॉज द एग्जामिनर मस्ट हैव बीन समवन टोटली डिफरेंट. कोई आदमी है जिसको लॉन्ग आंसर चाहिए होते हैं, किसी को पॉइंट्स में चाहिए होते हैं ताकि इजीली दिख जाए. सेम विद द इंटरव्यूज एंड ऑल, कोई काम करता है, कोई काम नहीं करता. वो आप 16 घंटे पढ़ के जाओ इंटरव्यू के लिए, बट या इंटरव्यू वाले आंसर का एस्केप. सो इन वन इंटरव्यू आई गॉट रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ IIT थिंग. सो उधर एक HC गुप्ता करके UPSC मेंबर थे, ही वॉज IIT दिल्ली प्रोफेसर, एंड मेटा टाइप के ही कुछ फील्ड के थे, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में उन्होंने 200 पेपर वगैरह लिखे हुए थे. तो मुझे वो मेटा का देख के, मतलब मैं ऑलरेडी 4 साल से प्रिपेयर कर रहा था, मैं गया था न्याय की बात करने, वो मैंने गवर्नमेंट और वो मेरे से पूछते हैं व्हाट इज मेटा मटेरियल्स. लकीली आई न्यू, सो आई गिव द आंसर. देन ही से व्हाट इज पीजो इलेक्ट्रिसिटी, आई न्यू, बट ही वाज नॉट सेटिस्फाइड. ही सेड कि तुम मेटा मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग हो, ये बताओ ये मोबाइल फोन की टच स्क्रीन किस मटेरियल की बनी है. अभी क्या यूटियम लिथियम ऑक्साइड क्या होता है मेरे को पता है. एंड सो दैट वाज समथिंग जो मुझे पता ही नहीं था. आई गॉट द लोएस्ट मार्क्स इन दैट ईयर. अदरवाइज इन द ईयर आई गॉट सिलेक्टेड, आई गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन इंटरव्यू. तो वो आपको पता ही नहीं होता है व्हाट विल वर्क, सो यू जस्ट डू द सेम थिंग एंड देन दैट ईयर इट माइट वर्क. सिमिलरली संस्कृत एंड ऑल एवरीथिंग इट हैपेंड द सेम. एक साल में टॉप 100 में 5 बच्चे संस्कृत वाले थे, नेक्स्ट ईयर में पूरी लिस्ट उन्होंने खाली कर दी, एक भी बंदा संस्कृत से नहीं लिया. सो दे डू समथिंग कॉल्ड स्केलिंग. ये ऑप्शनल में किसी में मार्क्स ज़्यादा हो जाएंगे, किसी में कम हो जाएंगे, तो दे कीप अ फैक्टर कि हम इससे रैशनलाइज करेंगे, बट वो उससे रैशनलाइज नहीं करते हैं, वो उससे इरैशनलाइज करते हैं, एंड देन दे किल द सब्जेक्ट दे डोंट वांट, एंड यू कांट डू एनीथिंग. सो यू नो cry for 2 days and then you put your efforts again in the same thing. I totally agree. जैसे यहाँ पे भी कई सारे ड्रॉपर्स होंगे, राइट? So what did you do when you were not selected in first attempt? Obviously you must have feel dejected, पर लगा होगा कि एक और अटेम्प्ट ही तो है, तो देके खत्म करते हैं, इतना पढ़ लिया, राइट? तो यहाँ पे 6 अटेम्प्ट होते हैं बेसिकली, तो आप कहीं ना कहीं सोचते कि थोड़ा सा दे देते हैं. पहले मेरे 2 अटेम्प्ट में भी वैसा ही हुआ था. तो आई थिंक कि थोड़ा जैसे नंबर्स आ रहे थे, मेंस के मार्क्स आ जाते हैं, तो 400 देन 600, तो आपको एक ट्रैजेक्टरी दिख जाता है कि आप कहीं ना कहीं जा रहे हो. तो आप, मैंने 3rd अटेम्प्ट दिया, हो गया होपफुली. तो रिजेक्शन का वही है, आप अपना एक पहले तो ट्रैक देख लो, आपसे प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है उस तरीके से, रिजेक्ट अगर फील कर रहे हो तो, एंड फिर इसके साथ मोटिवेशन जो बैक में है ना, वो काफ़ी काम करता है. मतलब द रीज़न यू स्टार्टेड,
वो चीज़। उसके बाद फिर सोशल सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट अगर रिजेक्टेड हो, वो भी चीज़ है, उससे यू कैन टेक सम हेल्प। और सेकंड एक क्वेश्चन वहाँ से जो आया था, जैसे कि आईआईटी, हाउ आईआईटी हेल्प, तो अभी इन्होंने जो बताया कि इनको काफ़ी दिक्कत आई थी, तो सेम थिंग आई वाज टेलिंग अबाउट कि आईआईटी का टैग होना इट्स अ प्लस थिंग, नो डाउट, जैसा कि अनिकेत ने एक्सप्लेन किया। बट अगर बोर्ड वैसा मिला है और सुबह अगर किसी का बीवी से झगड़ा हुआ है, वो आया है, तो वो फिर पूरा भड़ास वहाँ निकलेगी उसकी। हो सकता है कुछ इशू में, जैसा कि मेरा एपी था, उस टाइम में मिसाइल कुछ लॉन्च हुई थी, एक मेंबर ने मुझे उस मिसाइल पे पकड़ लिया कि इसकी वर्किंग बताओ, ये ऑटोमेटेड है नहीं है। जैसा तैसा मैंने थोड़ा बहुत रोबोटिक्स का लगा के पुटअप कर दिया उनके सामने। तो थिंग इज कि इट कैन गो आइदर वे, बट आपको रेडी रहना। ट्रू, मतलब व्हेन आई गॉट 98 रैंक, दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके बाद आई गॉट IPS एंड देन आई गेव माय सेकंड अटेम्प्ट एज वेल। तो सेकंड अटेम्प्ट में इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट व्हेन आई वाज रैंक 98, मेरे GS में काफ़ी कम मार्क्स थे। तो इन द सेकंड अटेम्प्ट आई इम्प्रूव अपॉन GS, मेरे कुछ 40 मार्क बढ़ गए। बट इन इंटरव्यू आई वेंट फ्रॉम 195 टू 151। अभी अगेन फ्रॉम बीइंग थर्ड और फोर्थ हाईएस्ट इन द कंट्री, आई एम शायद थर्ड और फोर्थ लोवेस्ट इन द कंट्री। तो there is no certainty in the exam, क्या होगा कब होगा, you can never know, but that's the thing कि मतलब there are two aspects to it. First is the emotional and second is कुछ सोचना, cognitive जिसको बोलते हैं। कि emotional is basically ठीक है, 2 दिन रो लो जैसे बोला, उसके बाद you have your family, you have your friends etc who will support you, तो उसके बाद you bounce back. The second aspect is cognitive कि ठीक है सोच लो, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ कर दिया है एंड स्टिल इट इज नॉट वर्किंग आउट, देन प्रोबेबली स्टार्ट लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, डोंट गेट स्टक देयर। एंड अगर कुछ लगता है कि कुछ और कर सकते हो, जैसे मेरे कुछ बैचमेट्स हैं जिन्होंने 1-2 मॉड्यूल 4 साल में पढ़े ही नहीं फिजिक्स के, तो ऐसे मत करो, मतलब ठीक है नेक्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ लेना। तो इफ यू हैव रीच्ड दैट सैचुरेशन, देन मे बी थिंक ऑफ समथिंग एल्स, बिकॉज देयर इज अ रीजन व्हाई यू गॉट रिजेक्टेड। अगर लगता है कि यू ट्राइड योर बेस्ट एंड स्टिल इट इज नॉट वर्किंग आउट, जस्ट हैव द करेज टू मूव ऑन। थैंक यू सर। अब जैसे आप लोगों ने बात करी थी इंटरव्यू की, तो थोड़ा नॉस्टैल्जिया में जाते हैं। आप लोगों को ऐसा कुछ मोमेंट आपके इंटरव्यू राउंड का याद हो, तब शेयर करना चाहिए। So my the last interview in which I got selected, I got 206 marks, which was very good. And why it worked out was because before I didn't get selected, and I was talking to you कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर सिलेक्ट नहीं होंगे तो हम कुछ भी पब्लिक सर्विस वाला काम नहीं करेंगे, वी विल गो बैक टू अर्निंग मनी, कोचिंग पढ़ाने लगेंगे, उसमें बहुत पैसा है, अनअकैडमी बाई बांट रहा है। तो हम मोस्टली लोग ऐसा ही करते हैं, हम भी वैसे ही सोच रहे थे। फिर बट देन आई थॉट कि देन द इयर्स दैट आई हैव इन्वेस्टेड इन प्रिपरेशन वुड बी अ लाइफ। तो मैंने क्या किया कि एक मतलब गवर्नमेंट केम अप विद एन आइडिया कि नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स जो इंडिया के मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें हम कैसे द मोस्ट इंटीरियर पार्ट्स पे रीच आउट करें। सो दे ब्रॉट अ प्रोग्राम कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर्स रूरल डेवलपमेंट फेलोशिप। सो इज अ very prestigious kind of fellowship. They will put you in the Naxal affected district. I went there, spent my 2 years. वो 2 साल I can tell you somehow nobody in the country respected me. कोई भी आता वहाँ पे any officer, any relative, somebody, everybody used to say तुम यहाँ क्यों पढ़े हो, तुम IIT बॉम्बे वाले हो। So इंडिया में क्या है ना, ऐसा सोशल सर्विस करने को बहुत रिस्पेक्ट नहीं है। सारा ग्लैमर जो है ना, आप इसलिए ग्लैमर नहीं है कि आप पब्लिक सर्वेंट हो तो आप देश सेवा कर लो, इसलिए ग्लैमर है कि यू आर समवन इम्पोर्टेंट जो कुछ और कर पाएगा। तो बट जो भी था, बट वो प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट फेलोशिप में मैंने 2 साल फील्ड में नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में बिहार में काम किया। वेयर वाज लिविंग टोटली इन द इंटीरियर एरियाज फॉर 2 years। तो मेरे पास इतने एनेक्डोटल एक्सपीरियंसेस थे, इतने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस थे कि दैट इंटरव्यू वेंट वेरी फाइन। एंड व्हाट इन दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू आई रियलाइज्ड वाज कि वो सुनना चाहते हैं कि आपको कुछ आप स्टडीज बुक्स के अलावा कुछ सोचते हो या नहीं सोचते हो। सो दे गेव मी वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चंस कि अच्छा तुम जो गरीब लोग हैं उनकी गरीबी कैसे दूर करोगे, वेरी जनरल काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं। सो आई सेड कि फर्स्ट यू हैव टू कैटेगराइज कि ये कौन लोग हैं, यू हैव टू फाइंड आउट वेदर दे आर द रिक्शा पुलर्स हु आर वर्किंग इन द ड्राई सन, कैन वी गिव देम अ वन मील,
Are they the rec figure children who are getting exploited? Can we give them a shelter home for night? Are these the women who work as house help in our houses? Can we give them 1 day weekly off? So you categorize what kind of people they are, what are their problems, and then you can find specific solutions. Now ये आंसर से कुछ डिफरेंट नहीं था. 2 साल पहले मैंने अगर आंसर दिया होता तो माय आंसर वुड बी कि इंडिया का बिगेस्ट चैलेंज एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, हेल्थ केयर है क्योंकि हमारा हेल्थ केयर सेक्टर पुअर है. आई वुड हैव गॉन विद एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो मेंस में ऑलरेडी हम लोग लिख देते हैं. बट दैट इंटरव्यू, बिकॉज ऑफ माई फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ 2 years, आई कुड आंसर समथिंग विच आई वुड नॉट हैव आंसर इन द प्रीवियस इंटरव्यूज. So that thing helped. And other such questions where I was talking from what I have learned. So अगर you take away from that is क्योंकि आप लोग तो वो 2 साल नक्सल एरिया में नहीं जाओगे. So what you can do is कि इंटरव्यू के लिए जब कभी जा रहे हो तो then rather than think कि मेंस में क्या लिख दिया था और उसको कट कर दो, एलिमिनेट कर दो. जो मेंस में लिख दिया था मेंस के आंसर खत्म हो गए. इंटरव्यू में दे आर नॉट देयर टू सी कि तुम सोचते क्या हो फ्रॉम द बुक्स, है ना, फ्रॉम द नॉलेज. तुम अपने प्रैक्टिकल लाइफ से अगर तुम कुछ कोरिलेट कर पाओ, कुछ वहाँ से नॉट इंस्टेंसेस एनेक्डोट सुनाने का टाइम नहीं रहता है वहाँ पे, दे विल नॉट अप्रिशिएट ऑल्सो, बट उससे लर्निंग्स अपनी अगर शेयर कर पाओगे उनसे तो इट्स लाइक एन इंटरेक्शन फॉर 30 minutes दैट विल वर्क. इंटरव्यू फर्स्टली तो जिसमें इसको थोड़ा रिफ्रेश करूँगा. इंटरव्यू जो आपने बोला था वो इट्स अ पर्सनालिटी टेस्ट, वो नोटिफिकेशन में भी लिखा होता है. तो दे आर टेस्टिंग योर पर्सनालिटी. तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है. जैसा कि अभी बताया तो मुझे भी एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें पूछी थी. तो आई ट्राइड टू गिव सम आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन. उस टाइम मुझे मैं पढ़ा रहा था, क्योंकि मैं पेस में पढ़ाता था, तो वहाँ पे भी मैंने एक इन हाउस डिस्कशन वगैरह करवाए थे, तो वो कुछ चीज़ें बताई. तो ये बिल्कुल राइट है कि आप वो मेंस छोड़ दो, वो आपका नॉलेज वहाँ तक टेस्ट हो चुका है. नाउ द थिंग इज आपकी पर्सनालिटी. तो वो काइंड ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट है और आपको हर तरीके के क्वेश्चन थ्रो किए जा सकते हैं. तो एजुकेशन रिलेटेड मुझे पूछा था, मुझे उस टाइम कश्मीर का भी इशू पूछा था कि क्या होना चाहिए या क्या किया जा सकता है. तो वो उसको उस तरीके से कुछ आउट ऑफ बॉक्स अगर आप सोच सकते हो जो कि विद इन दी 4 corners ऑफ लॉ है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉसिबल है, आप उसको बता सकते हो. टैफ एक्चुअली एक होता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, वो भरवाते हैं और उसके बेसिस पे ही मोस्टली जो है पैनल मेंबर, बोर्ड जो है आपसे पूछते हैं. मैंने अपनी हॉबीज़ में एक लिखा था वॉचिंग साई फिक्शन मूवी. नाउ उस पर मतलब आई वॉज लकी कि उस पर मुझे 3-4 क्वेश्चन पूछे. एक मेंबर थे, उन्होंने, अब इसमें भी 2 चीज़ें, आप सिर्फ अगर मूवी लिखोगे तो इट्स एन ओपन कैनवास, तो आपको वो पकड़ के कुछ तमिल मूवी भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने ऐसा तो लिखा नहीं बॉलीवुड टॉलीवुड. तो आई स्पेसिफिकली रोट साइ-फाई. दिस थिंग आई लर्न फ्रॉम माई प्रीवियस इंटरव्यू, प्रीवियस डैफ सिलेक्शन. तो उन्होंने मुझे पूछा था कि आपने सर्कल देखी है, उस टाइम में रिलीज हुई थी. फिर देन दे आस्क्ड मी इंटरस्टेलर आपने देखी है, तो मैंने 10 बार देखी थी, तो उसको मैंने एज इट इज उससे दे आस्क्ड मी कि आपने इंटरस्टेलर से सीखा क्या, वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एंड सेकेंडली आप उसको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में कैसे अप्लाई करोगे. तो आई गिव अ वेरी गुड काम आंसर इन दैट कि मैथ्यू मैकॉनी जब अपना फैमिली छोड़ के आउट ऑफ द प्लेनेट जा सकते हैं, तो व्हाई कांट वी गो इन अदर प्लेसेस एंड सर्व गोइंग आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द कैडर. उस पर भी था कि जस्ट वाई शुड वी ओनली टेक होम कैडर, वी कैन गो एनीवेयर. एक और उन्होंने ग्रेविटी पे भी पूछा था. तो इंटरव्यू जो होता है काफ़ी इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू गैदर योर पर्सनालिटी, क्योंकि उसके बाद वो जानना चाहते हैं कि आपको वो ट्रेन कर सकते हैं कि. ऐसा भी कई बार हुआ है, मैंने कई जैसे ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी है कई स्टूडेंट्स की, एस्पिरेंट्स की, तो उनको 90 and 110 मार्क्स दिए, विच इज़ वेरी exhaustively and categorically saying that we don't want you in service by the board. तो वो चीज़ भी है. बट इफ़ यूर नॉर्मल एवरेज एंड आप अगर एक पोलाइटनेस, हम्बलनेस के साथ अपनी बातें रखते हैं, तो इंटरव्यू गोज वेल. दे आर वेरी गुड पीपल, वार्म हार्टेड, एंड दे हैव अ क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस ऑफ लाइक डबल एंड ट्रिपल years of your age. They are 65 years of age. They have worked in the government for 30 odd years. So they know everything.
द मोमेंट यू एंटर द रूम दे नो कि ये आप क्या सोचते हो, और आपको बस वो चेक करते हैं कि इस पैरामीटर पे टिक हो रहे हैं कि इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस. यू प्रिपेयर वेल एंड आई थिंक इट विल गो गुड. तो आई थिंक मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था इन द सेंस कि मुझे जो भी क्वेश्चंस पूछे थे इन बोथ द ईयर्स दे वर वेरी मेंस लाइक ही क्वेश्चंस थे. फॉर एग्जांपल इंडिया नेपाल बॉर्डर पे क्या इश्यूज है, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंट्रोड्यूस हो रही है इंडिया में, व्हाट आर द इश्यूज विद देम एक्सेट्रा. तो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच यू कैन इजीली आस्क इन मेंस एज वेल. बट उसमें भी एज सर सेड कि दे आर नॉट एग्जैक्टली लुकिंग एट योर आंसर, दे आर लुकिंग एट योर पर्सनालिटी. तो द फर्स्ट थिंग इज बाय बीइंग अ सिविल सर्वेंट यू नीड टू बी वेरी हम्बल. तो बीइंग हम्बल, बीइंग ट्रेनेबल, बीइंग एक्सेप्टिंग ऑफ अदर्स पॉइंट्स, ये सब उधर देखते हैं. मतलब दे कैन थ्रो रैंडम क्वेश्चंस एट यू और रैंडम काउंटर क्वेश्चंस एज वेल टू यू. So how well do you accept this? The second is thinking. I think this was in my first attempt जब मुझे इंटरव्यू में 195 मिले थे. This electric vehicle का आंसर आई gave in a very structured approach कि right from mining में क्या होता है, like कॉन्गो में माइनिंग होती है, चाइल्ड लेबर होता है, टिल लिथियम को डिस्पोज भी करने में कितना एनर्जी जाएगा. सो थ्रू आउट द वैल्यू चेन आई गेव द अप्रोच. आई थिंक दैट स्टूड आउट. But the questions would be completely dependent on the board. The way you present it will depend on you. And again, you get around 3-4 months, I think, to prepare for the interview. Usme by giving mock interviews, preparing with your own batchmates, you can groom yourself. Exactly, I also agree, and I'll add one more point. जैसा कि मैंने अभी sci-fi मूवी के बारे में बताया. Now that was a ball like I went for a sixer in that. यहीं पे secondly मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस एंड IR. बोर्ड था सुजाता मेहता मैडम का बोर्ड था, एंड शी वाज एन IFS ऑफिसर, विदेश सेवा, भारतीय विदेश सेवा, फॉरेन सर्विस, नॉट दी जंगल वाला. अब उन्होंने द मोमेंट शी सॉ माय डैश शी न्यू कि इज फ्रॉम PSIR. मुझे एक भी क्वेश्चन 30 मिनट में IR का नहीं पूछा, एक भी, क्योंकि उनको पता था कि द मोमेंट दे विल आस्क ये शुरू हो जाएगा. राइट. तो ऐसा होता है वहाँ पे कि यू हैव टू बी प्रिपेयर वेल. जरूरी नहीं है आपका बैकग्राउंड है तो आपको पूछेंगे. जैसा मेरा फिजिक्स बैकग्राउंड था, मैं चाहता नहीं था मुझसे पूछे, पर पूछा गया मुझसे. राइट, इट हैपन. Well, that was very informative, sir. Now we will be moving on to the next round, which is rapid fire questions. So basically in this segment, you will have to answer the questions as fast as you can and in a word or a sentence. So are you ready? Okay. So the first one is, any unique experience you had this year? तो कैसे वन वर्ड में? I'll say pass. One word or a sentence. एक्सपीरियंस आई से कि मैं इंदौर में पोस्टेड था, आउट ऑफ नोवेयर मुझे उठा के खंडवा पोस्ट कर दिया. यूनिक एक्सपीरियंस फॉर मी. आई वुड से यहाँ बैठा वही यूनिक है. ऐसा कोई टास्क है जो बाकी लोग इजीली कर लेते हैं बट आपको बहुत डिफिकल्टी होती है उसे करने में? पढ़ाई करने में. I'll say the same, but I can डांस करना. Okay. So if you had a time machine, then what would be that one day that you want to relive? The day you get selected in UPSC, क्योंकि you feel that you have arrived, you have achieved. instead of one day, I would really like to live all the 4 years of IIT again. For me, it would be, I think, the day of the selection. So this one is a personal question. What was the CPI? Everyone is curious now. 7
0.01. सिर्फ सीपीआई नहीं, मैं आपको पूरा एसपीआई से बताता हूँ। ईपी में पहले सेमेस्टर में देयर वाज आई थिंक 6 और 7 ऑड कोर्सेज, जिसमें से 4 हमारे फैकल्टी ने आधी जनता को ड्रॉप करवा दिए। So I passed only in NSO and 1 physics lab. And that too my NSO was Kho-Kho. उसके बाद सेकेंड ईयर में भी इकोनॉमिक्स था, लीनियर इक्वेशन, वो ड्रॉप करवा दिया। MA 105 से लेके कॉम्प्लेक्स तक हमेशा FR आया था मुझको। थर्ड ईयर ऑनवर्ड से फिर देन ट्रैक सही था, तो फाइनल वॉज 6.05। Mine was 8.8. So the last one, अगर आपके ऊपर कोई मूवी बने तो what would be the title of that movie? Average guy. I had around 8 FRs, so I would say कि 8 फर्रे करके एक मूवी। यार आई वुड से अभी तो लाइफ चालू हुई है, 20 साल बाद पूछो बता दूंगा। मैं आकाश से बेटर था, मेरी 9 कोर्स में चौकी लगी थी, FR 1 में नहीं लगा। What was your favorite place in IIT Bombay? शायद हमारे टाइम पे शायद होता था और तो कुछ होता नहीं था। शायद की वजह से अभी यही इवेंट तो नहीं है शायद। दैट नेस्कैफे का शायद था, नहीं वो चला गया। मेन बिल्डिंग के अभी तो सीसीडी वगैरह। हाँ, वो हमारे फाइनल ईयर के टाइम में चला गया। लेक साइड वॉज द गुड थिंग। हॉस्टल 12 दैट इन लेक साइड। द हॉस्टल टाइम वाज द फेवरेट। नहीं मेरी मम्मी इंस्टी की नहीं इस साइड। मेरा तो मेरा रूम था यार, हॉस्टल भी था, बहुत सुंदर हॉस्टल है। Okay, so that was great. So before wrapping up, any last piece of advice that you would like to give to everyone present out there? कि एकदम सोच लेना कि करना है कि नहीं करना है, क्या करना है। डोंट प्लंज क्योंकि किसी वेग आइडिया के कारण कि भाई ऐसा अच्छा है तो करना है, क्या करना है। थिंक इट थ्रू। उसका जो भी जनरल लोग कहते हैं कि राइट इट डाउन ऑन द पेपर, तो क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या तुम्हारे एम्बिशंस हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं, व्हाट इज दैट यू आर पुटिंग एट स्टेक, व्हाट इज इट दैट यू विल लूज आउट। वो सारा एक बार शॉर्ट एनालिसिस, फ्लो चार्ट, जो बोलना है वो बोल के वो करके देख लेना। एंड देन अगर थोड़ा सा भी डाउट लगे तो पहले 2 साल नौकरी करके देख लेना प्राइवेट सेक्टर में। उसके बाद अगर आ जाओगे तो ऑफकोर्स अच्छा ही है, बट देन डोंट जंप बिकॉज ऑफ सम वेग आइडियाज। आपको मैं 2 लाइन में बताता हूँ फाइनल थॉट्स। दाग मूवी आपने किसी ने देखी हो तो उसमें एक डायलॉग था, इज्जतें उल्फतें शोहरतें चाहते, इज्जतें उल्फतें शोहरतें चाहते, सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। इज्जतें उल्फतें शोहरतें चाहते, सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था। इज्जतें उल्फतें शोहरतें चाहते, सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था।
मयंक सर ने बोला कि स्वॉट एनालिसिस वगैरह फाइनल ईयर वालों के लिए तो ठीक है, बाकी लोग तो इंस्टी एंजॉय कर रहे अभी. Any relationship advice? Keep your own call. Yeah, so this brings the end of for today's session. I would like to thank you for coming and liking the Before we wrap up, I would just like to say one more thing. कि I have started this one initiative. मतलब it's not a promotion, but मेरे कुछ बैचमेट्स के साथ हमने मिलकर एक YouTube चैनल अभी लास्ट वीक ओपन किया है. तो फर्स्ट 2 इंटरव्यू वी डिड विद वन ऑफ माय IPS बैचमेट हु इज पोस्टेड एज SP इन चिकमंगलूर, कर्नाटका, एंड द अदर इज द फॉरेस्ट सर्विस हु इज डूइंग ट्रेनिंग इन FRI देहरादून. FRI इज द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. तो उस पर हमने काफ़ी सारी इन सर्विस की भी बातें की हैं, सिविल्स की बातें की हैं, हाउ टू राइट प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू. तो आप कुछ टाइम में वो हम लोग लाइव करेंगे, तो आप उसको ज़रूर देखना. उसमें बहुत अच्छे से कट टू कट एक पीस पे हमने बातें की है, विच वी थिंक कि उस टाइम में हमें बताई जाती तो आई थिंक थोड़ा और जल्दी निकाल सकते थे या अच्छे से एडवाइस मिलती. तो आप यूट्यूब पर मैं यहाँ पे SRC मैं बता दूंगा, तो आप वहाँ देख सकते हो. इट्स अ वेरी गुड पॉडकास्ट काइंड ऑफ थिंग, तो यू ऑल विल रियली एंजॉय इट. Now I would like to invite Kinjal Saw and Nirud Goyal to present Memento as a token of thanks and appreciation. Thank you, Anirudh and Kinjal, and to everyone present in the audience for taking time out of your busy schedule. This is the way outside, so please make your way up there, and hope you have a great evening.